हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 316। 316 आर्टिकल क्या कहता है उसके बारे में बताऊंगी। 316 आर्टिकल बात करता है सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा और उनकी पदावधि, उनका कार्यकाल क्या होगा, उसके बारे में 316 अनुच्छेद बताएगा। तो पहले मैं इंग्लिश में पढ़ लेती हूँ। 316 आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 316, अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स। 316 article says about an appointment and term of office of members. Number 1, the chairman and other members of a public service commission shall be appointed in the case of the union commission or a joint commission by the president, and in case of state commission by the governor of the state. Provided that nearby as may be one half of the member of every public service commission shall be person who at the dates of their respective appointments have held office for at least 10 years, either under the government of India or under the government of a state. And in computing the said period of 10 years, any period before the commencement of this constitution during which a person has held office under the crown in India or under the government of an Indian state shall be included. Number 1A, number 1A, number 1A क्या कहता है? Number 1A, if the office of the chairman of the commission becomes vacant, or if any such chairman is by reason of absence or for any other reason unable to perform the duties of his office, those duties shall until some person appointed under clause first to the vacant office has entered on the duties thereof, or as the case may be, until the chairman has resumed his duties, be performed by such one of the other, as the case may be, until the chairman has resumed his duties, be performed by such one of the other members of the commission as the president. In the case of the union commission or a joint commission, in the case of the union commission or a joint commission, and the governor of the state in the case of a state commission may appoint for the purpose. Number 2, a member of a public service commission shall hold office for a term of 6 years from the date on which he enters upon his office, or until he attains, in case of the union commission, the age of 65 years, and in the case of a state commission or a joint commission, the age of 62 years, whichever is earlier, provided that number A, a member of a public service commission may, by writing under his hand addressed in the case of the union commission or a joint commission to the president, and in the case of state commission to the governor of the state, resign his office. Number B, a member of a public service commission may be removed from his office in the manner
provided in clause 1st or clause 3rd of Article 317. Number 3rd, a person who holds office as a member of a public service commission shall, on the expiration of his term of office, be ineligible for reappointment to that office. अब मैं इसको हिंदी में पढ़ लेती हूँ। अनुच्छेद 316, संविधान का अनुच्छेद 316, सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। नंबर 1, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति। लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनकी और अन्य सदस्यों की नियुक्ति, यदि वे संघ आयोग या संयुक्त आयोग है तो राष्ट्रपति द्वारा, यदि वे राज्य आयोग है तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा। क्या कहा जा रहा है? यदि जो राज्यों का जो आयोग है उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। परंतु प्रत्येक लोक सेवा आयोग के सदस्य में से यथाशक्ति निकटतम आधे ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण कर चुके हैं। उक्त 10 वर्ष की अवधि के संगणना करने में इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले की ऐसी अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने भारत में क्राउन के अधीन या किसी देशी राज्य की सरकार के अधीन पद धारण किया है। नंबर 1 का यदि आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या यदि कोई ऐसा अध्यक्ष अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तो क्या होगा? तो ऐसी यथास्थिति में जब तक रिक्त पद पर खंड 1 के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति उस पद का कर्तव्य भार ग्रहण नहीं कर लेता है, तब तक अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से नहीं संभाल लेता है, तब तक आयोग के जो अन्य सदस्य हैं उनमें से एक सदस्य जिसे संघ आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में, राष्ट्रपति या राज्य आयोग की दशा में उस राज्य का राज्यपाल इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उन कर्तव्यों का पालन करेगा। नंबर 2, लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद की तारीख, अपने पद ग्रहण करने की तारीख, जिस दिन वो अपना पद ग्रहण करता है यानी शपथ लेता है अपने पद की, उस तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या संघ आयोग की दशा में 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, यानी 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, और राज्य लोक या संयुक्त आयोग की दशा में 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा। परंतु नंबर का लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य संघ आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति को और राज्य आयोग की दशा में राज्य के राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। नंबर खा लोक सेवा आयोग के सभी सदस्य को अनुच्छेद 317 के खंड 1 या खंड 3 में उपबंधित रीति से उसके पद से हटाया जा सकेगा। नंबर 3, कोई व्यक्ति जो लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, यानी उस पद को बार बार धारण नहीं कर सकता है, पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। ये बात कही गई है इसमें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलती हूँ नए अनुच्छेद 317 के साथ। 317 क्या कहता है? लोक सेवा आयोग के सभी सदस्य का हटाया जाना, निलंबित किया जाना, इसके बारे में, यानी 317 आर्टिकल सेज रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ अ मेंबर ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन। सो अभी के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज़। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत।
और हाँ, संविधान को पढ़ते रहें, रोज़ एक न एक चैप्टर ज़रूर पढ़ें, कुछ पढ़ें, कोई न कोई किताब पढ़ें। अगर संविधान ना पढ़ें, उसके अलावा भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक बुक्स हैं, उनको पढ़ें, क्या, ताकि ज्ञानार्जन करते रहें लाइफ में, पढ़ना ना छोड़ें, पढ़ें ज़रूर, कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ें जो समाज के लिए हितकर हो, समाज के लिए, देश के लिए, जनता के लिए हितकर हो, ऐसी चीज़ें ही पढ़ें। आडंबर वाली, भूत पिशाच वाली, झाड़ फूक वाली चीज़ों को ना देखें, ना ही पढ़ें, ना ही उनमें विश्वास करें। हिपोक्रेसी, पाखंड, अंधश्रद्धा से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको त्याग दें। ऐसी सामग्रियों को ना ही अपने घर में रखें, ना किसी और को रखने दें, क्योंकि साइंटिफिक थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग के साथ जिएं और दूसरों को भी जीना सिखाएं। थैंक यू। जय हिंद।